We are here in Islamabad. Hi Hulko, Assalamu alaikum. After long 1.5 months of hard work, We really relax now. yeah, for the first time it's 29 Rosa today, and maybe tomorrow is Eid, or if it's no Eid, we're gonna be day after tomorrow Eid. Papa spoiled my Eid. I had a big fight with Papa. No, Because- it was not fighting. It was a flower fighting. Yeah, but I shout to him. I say, why you don't understand? Why you still act like a little young boy? He should understand my feeling as well. Anyway, so खान पापा ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया था ईद का, तो जब मैं रो पड़ी फिर किया। हेलो पापा खान को बच्चा मिल गया। So पापा खान ने मुझे उठाया। Anyway, I'm too heavy to pick for him. Come to Islam. So we come to Islamabad. The plan was to Lahore. Let's see. So here we are in Jinnah Super. ये मेरा favorite market है, क्योंकि मैं अपनी best friends जो कि मर्दान से बिलोंग करते हैं, मैं उनके साथ हमेशा जिन्ना सुपर आया करती थी और यहाँ पे चिकन पीस खाती थी, और वही मैं चिकन पीस उनकी याद में खाऊंगी। सो पापा खान के साथ हूँ और यहाँ पे पापा खान कह रहे थे नांडोज चलते हैं, नांडोज। मैंने कहा नहीं, मैंने यही चिकन पीस खाना है। तो यहाँ पे मुझे अभी एक बच्चा आया कि मेहंदी लगानी है। मैंने कहा हाँ लगानी है, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेहंदी केमिकल की नहीं हो, क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। पर देखते हैं, आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाती हूँ यहाँ का। ओके, ये अभी सब लोग यहाँ बैठे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, और वहाँ ये चूड़ियों का एक स्टॉल लगा हुआ है, मेहंदी का स्टॉल लगा हुआ है। अभी तो मेरे ख्याल में रोज़े इफ्तार हो गया है, तो ज़्यादा लोग नहीं अभी आ जाएंगे। पापा खान पैसे गिन रहा है। एंड नाउ फूड इज़ अराइव। मैं पापा को कह रही हूँ कि अभी सब्र करो, अभी ना डालो, मैं पहले फूड दिखा दूँ। ये ऐसी स्ट्रीट फूड है तो बस इन प्लेटों में मिलता है। अब हम आ गए हैं सफ़ा गोल्ड मॉल। यहाँ से पापा मेरे लिए शॉपिंग करेगा, पर मेरा दिल पता नहीं क्यों उदास है। दिल उदास, दिल पेशवरी नहीं हुआ। मेरा दिल उदास है। मैं अभी फिर रो के हटी। आई थिंक मुझे बच्चे याद आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखो ये नया बिल्डिंग है। नया नहीं है, सफ़ा गोल्ड मॉल बहुत पुराना है। तो 223 क्यों लिखा है? ये फ्लोर 223 पे बना होगा। इसमें तो मैं 5 साल पहले आई हूँ। अच्छा, पापा पेशावर से निकले तो पता लगी उसे ना। हाँ, पेशावर से दरगई से पेशावर लोकल बस चलाता है। लोकल बस चलाता है। कपड़े दुकान। Come here? Yeah, it's inside. It's inside. He's gonna buy me loads of suit because I give all my clothes to charity. So these are the tops. Brother said Brother said 7,000, but now he discounted for 6,000, and I asked for 5,000. Can you give me for 5,000? Come on, this brother, and his shop is in Safa Mall. Look, the variety, okay? And now I'm buying some nuts, sweet and Turkish delight from Safa Mall. Look at that. सही है। Choose me all those dresses. Can you show them? Okay, so this is for my Eid. This is all Papa choice. And the shop name is Ethnic. So this is the shop. This is the one. That's Papa choice. I think I'm gonna wear it on Eid. Yeah, no.
And that's another one. It's just a casual wear but with bit embroidery with trouser. And this one is just casual wear as well, a full printed suit. Again, this one is full printed suit, casual. And that one is my special Eid dress. I love this one. I really like it. And this one is for my second day Eid clothes. Yeah. And now I'm here to eat Burger Fest in Jinnah Supermarket, Marcus. Oh my god, this is so delicious. Wow. We tried this before as well, guys, and it was so nice. Look how fun is sitting here. And look at the rain. Look. So it's so bad, the rain. It spoiled all the Chandras. And look, burger, instead of Burger King, it's Burger King. So it's Friday today. आज फ्राइडे का दिन है, जुम्मतुल विदा है. यूके में ईद है, हमारी ईद नहीं है, पर हमने दोनों ने नए कपड़े पहन लिए हैं. ये देखिए, कल पापा ने मुझे एथनिक से लेके दिया है. देखिए कितना प्यारा सूट है. स्कार्फ मेरा पुराना है, जूते मैंने नहीं लिए अभी, और स्कार्फ भी पुराना है, लेकिन इस पे देखिए कितना डिटेल का ये लगा हुआ है. बहुत ही प्यारा सूट है. मुझे लार्ज साइज नहीं मिला, मैंने मीडियम ले लिया, लेकिन माशाल्लाह फिटिंग बहुत प्यारी है. तो चलिए अब चलते हैं लाहौर. चलो आओ. तो हम जा रहे हैं लाहौर. प्यारी सी मोटरवे है. रोड बहुत खतरनाक है. अच्छा, दूसरी आपको एक बात बताऊं. क्या हुआ, पेशावर से जब हम पेशावर में थे परसों, कल तो हम इस्लामाबाद में थे, परसों जब हम पेशावर में थे तो इतनी बारिश थी, कि यानी यूके की बारिश को भी उसने पीछे छोड़ दिया था. इतनी बारिश थी, साथ में ओले, इतना बड़ा बारिश का पूरा ड्रामा. फिर हम रास्ते में आने लगे. जब हम रास्ते में आने लगे, इस्लामाबाद की सारे रोड ड्राई थे. तो हम बड़े खुश हुए कि शुक्र है यहाँ तो बारिश नहीं हुई. बड़ा प्लेजेंट वेदर था. जैसे ही हम इस्लामाबाद में आए और चांद रात के लिए निकलने लगे, तो इतनी बारिश हुई कि वो बेचारे इस्लामाबाद वालों का सारा चांद रात कैंसिल हो गया और हम वापस चले गए. बस कपड़े पापा ने मेरे लिए हम वापस चले गए. आज सुबह जब हम इस्लामाबाद से निकल रहे थे, बड़ी धूप निकली हुई थी, बड़ा प्लेजेंट वेदर था. हम आ रहे थे, ये देखिए, ये एक्सीडेंट देखिए, इतना ख़तरनाक मोड़ है. इस पर 4 दफ़ा लिखा हुआ है ख़तरनाक मोड़ है. फिर भी ये बिग लारियाँ और हमारे जैसे कार, क्योंकि मेरा भी एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था, स्किड हो गया था. हालांकि 4 दफ़ा वार्निंग है कि ये ख़तरनाक मोड़ है. और ये काला कहार के पास है. तो आप जब भी लाहौर की मोटरवे पे आए, काला कहार के बाद जो मोड़ आता है, बहुत एहतियात से करें, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ, मेरा खुद का भी हुआ है स्किड हुई थी गाड़ी, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ एक लॉरी उल्टी पड़ी होती है, साथ में कार भी. फिर लाहौर आए. लाहौर की जैसी मोटरवे से निकले, बड़ा प्लेजेंट वेदर था. मैंने कहा खान को बहुत ही नाइस वेदर है, अब इंशाल्लाह लाहौर में एंजॉय करेंगे. तो अब लाहौर के काला कहार से आगे आ रहे हैं, तो क्लाउडी हो रहा है और रिमझिम बरसने के इम्कानात हैं. तो पापा कह रहे थे हम जहाँ जाते हैं बारिश साथ लेके जाते हैं. अब ये अल्लाह की रहमत है या क्या है कि जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ हम साथ ही बारिश लेके जाते हैं. और मौसम प्यारा है, लेकिन ये देखिए पाकिस्तान के लिए तो ये वेदर बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी प्लेजेंट है, गर्मी नहीं है. पर हमारे लिए बुरा है क्योंकि हम चांद रात के लिए रवाना हुए. अल्लाह खैर कर. But it's cold. I mean, but it's rainy. Very nice weather. Sometimes raining, sometimes not.
people like it, but how I gonna like it? Because I want to celebrate Eid. Okay, so Alhamdulillah, today is the last iftar in Swat. और यहाँ रमज़ान की एक्टिविटीज सारे स्टॉप होते हैं इंशाल्लाह। अभी और भी हम आई थिंक ममा वेलफेयर जो मेरी चैरिटी है, हमारी चैरिटी है, उसमें हम एक दिन के लिए भी नहीं बैठते, लगातार पूरा साल काम करते हैं। लेकिन रमज़ान से एक महीने पहले और रमज़ान में हम अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों का काम करते हैं। तो वो आज स्टॉप और आज दुनियादारी शुरू इंशाल्लाह। आज दुनियादारी नहीं बल्कि कल भी हम निकले हैं घर से, लेकिन ये है कि आज से ये आखिरी इफ्तार है और फिर इंशाल्लाह इसके बाद ईद की पार्टी होगी और बच्चों के लिए उसमें उनमें गिफ्ट तकसीम करेंगे। लेकिन ये ईद की चौथे दिन होगी और ये 3 दिन मेरी छुट्टी मैं और पापा इंजॉय करेंगे। और पापा ने भी कल इंजॉय किया है। What you enjoy the most? Anything. Buying me clothes? Yeah, buying clothes, walking around, shopping. ये फर्स्ट टाइम पापा शॉपिंग से तक नहीं था, नाइस इंजॉय कर रहा था। नहीं तो पापा बाजार का आदमी नहीं है ना, पापा को बाजार पसंद नहीं है, पापा को माउंटेन पे जाना पसंद नहीं है, पापा को सिर्फ घर में रहना, घर का खाना खाना, बाहर का खाना हो लेकिन घर में लाके खाए। और क्या पसंद है आपको? अच्छे खाने पसंद है। अच्छे खाने पसंद है, मस्जिदें पसंद है, इबादत पसंद है। और अच्छे खाने अल्लाह सारी जिंदगी दे रहा है। आमीन आमीन आमीन। और अल्लाह आगे भी दे रिज़्क़ हलाल, हमारी रिज़्क़ को अल्लाह पाक साफ रखे कि उसमें 0% भी कोई मिलावट ना हो। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। और अगर कभी गलती इंसान से हो जाए तो अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन रिज़्क़ हलाल खाना, बच्चों को खिलाना और रिज़्क़ हलाल पे ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कदम कदम पे चैलेंजेस आते हैं लोगों को। तो मैं कहती हूँ वही इंसान कामयाब है जो रिज़्क़ हलाल खाता है, रिज़्क़ हलाल बच्चों को खिलाता है और रिज़्क़ हलाल पे सब्र शाकिर होता है, वही सही है। वैसे पापा खान ने मेरे लिए परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं, जिंदगी गुजर जाती। यू नो उनकी भी तो गुजर रही है जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो बहुत कुछ है। ये भी कोई जिंदगी है जो परेशानी को बगैर हो। और एक बात को इंसान कभी भी पूरा नहीं होता, क्योंकि जब मेरे पास होंडा कार थी तब मैं विश करती थी कि मेरे पास मर्सिडीज हो, फिर जब मेरे पास मर्सिडीज थी फिर मैं विश करती थी कि मेरे पास लैंड क्रूजर हो, या फिर मेरे पास मित्सुबिशी, फिर मेरे पास मित्सुबिशी थी। तो फिर अब इंसान होता है, मैं हालांकि बहुत प्रैक्टिस करती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं दुनिया से दिल लगाऊँ, लेकिन फिर भी होता है कि हाँ अब इसके बाद में काश अल्लाह बेंटली दे दे। तो ये ख्वाहिशात कभी भी पूरे नहीं होते। और खान पापा के पीछे आज जो फ़ोन कॉल आ रहे आप यकीन नहीं कर रहे हैं। ओए सिद्दीक, ये तो सिद्ध है, मेरा बच्चा है, इज्जत का कन रखा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। Me and Papa going to Dina, my beautiful child, and Siddiq is online. Dina, you look so pretty. उनका फ़ोन है, मोटरवे है, तो मैं उनसे बात करके आपको फिर करती हूँ। दीना और सिद्दीक ने फ़ोन किया है, उनकी ईद है, हमारी ईद नहीं है। तो दीना और सिद्दीक और बच्चों का कॉल था, क्योंकि लड़कियाँ सारी गई हैं ब्रेडफोर्ड और दीना और अमीरा अकेली रह गई हैं कार्डिफ। तो अब वो दोनों साथ ईद मनाएंगी, तो मुझे थोड़ा सा फील सॉरी हो रहा था, क्योंकि दीना के बच्चे ज़्यादा अटैच हैं कैलब, माया और एला वगैरह के साथ, तो वो थोड़ी सी खफा सी थी, तो दिल थोड़ा सा उदास हो गया। लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। दीना बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकती है, कहती है ब्रेडफोर्ड तक ट्रैवल बहुत लॉन्ग है, इसलिए वो नहीं गई।
तो वो तीनों उधर है और मेरी सिद्दीक के बच्चों की तो अपने कज़न्स में बस जान है। लेकिन दीना और सिद्दीक ने बातें की, दिल खुश हो गया। और अब समी और उसकी बीवी की बारी है। सुबह सवेरे सारी तीनों लड़कियों, तीनों मेरे दामाद, उनके बच्चे सब सुमैया की तरफ है। तो नाफिया, सुमैया, मलीहा, रिजवान, इकबाल और साद और सारे ग्रैंड चिल्ड्रन उधर ब्रेडफोर्ड है। कल चांद रात वो मना रहे थे, आज उनकी ईद है। और दीना और सिद्दीक और समी और अमीरा एक साथ ईद मना रहे हैं। अभी ईद ब्रेक के लिए जा रहे थे तो उनका कॉल था। तो दिस इज़ अ गुड पार्ट ऑफ लाइफ व्हेन योर चिल्ड्रन कॉल यू, व्हेन दे केयर अबाउट यू। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब घर के बड़े में होता है कि घर का बड़ा चाहे तो वो उन सब की को जोड़ के रखता है, अपने बच्चों को जोड़ के रखता है। जब घर का बड़ा बहू के खिलाफ बातें करता है, दामादों के खिलाफ करता है, बच्चों के खिलाफ, तो उनमें नफरतें बढ़ती हैं। और नफरत फिर उन बहन भाइयों में भी नफरत होती है। हमारे घर में भी होता है कि बहन भाई एक दूसरे से शिकायत कर लेते हैं और मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं उनको ऐसे उनका ब्रेन वॉश कर लेती हूँ कि नहीं ये ऐसा है, नहीं ऐसा है। तो मेरी ट्राई होती है कि मैं इनको एक जगह पे रखूँ। जब घर में 5 बंदे हो, 6 बंदे हो तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है, लेकिन घर के बड़े को, ख़ास कर घर में जो औरत बड़ी है उसको चाहिए कि वो उनको इकट्ठा रखे और ज़रा सी बात पे गिले शिकवे ये ना करे और पैसे 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 और ये सारा ना करे। जी, खुदगर्जी छोड़ दे, क्योंकि अक्सर वो घर और उनके बच्चे तबाह हो जाते हैं, उनमें नफरतें हो जाती हैं। जहाँ जो माँ होती है सास की शक्ल में होती है, जो वहाँ नफरतें फैलाती है, जो बेटियों के साथ बैठ के बहुओं की बातें करेगी, बहुओं के साथ बैठ के बेटियों की बातें करती है, वहाँ मैंने देखा है कि वहाँ उन औलाद में सिर्फ नफरत होती है। तो जो भी मेरी सिस्टर या कोई जो मेरी ब्लॉग देख रहे हैं, उनके लिए मेरे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि अपने घर के बच्चों को जोड़ के रखो, उनमें नफरतें ना फैलाओ। अगर आपका अपनी बहू से दिल खफा भी हो जाए तो बेटियों के साथ डिस्कस ना करो, बहू को बता दिया करो कि मेरा इस बात पे आपसे दिल खफा है। लेकिन बच्चों में एक दूसरे में ये ना कहो कि मेरा ये बच्चा सही है, ये गलत है, ये, उससे आपके घरों में नफरत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मोहब्बत, मैं ये क्रेडिट अपने आप को देखती हूँ और खान पापा को भी देती हूँ, क्योंकि खान पापा भी कभी नहीं ये कहता कि ये बच्चे ने ऐसा किया। अगर कभी मैं थोड़ी बहुत शिकायत कर भी लूँ, कहता है कोई बात नहीं, एंजॉय करने दो इनको लाइफ। तो हमेशा ये सोचो, जो अपनी बेटियों के लिए सोचते हो वही अपनी बहुओं के लिए सोचो। अगर आप लोग इग्नोर करना सीख जाओगी तो वही बहुएं आपको इतना प्यार करेंगी। यकीन करिए, अमीरा और दीना मुझे इतना प्यार करती है कि कभी कभी मेरी बेटियां भी कह देती है कि हमें लगता है कि तुम हमसे ज़्यादा उनको प्यार करते हो। मैं उनको कहती हूँ तुम लोग मेरी औलाद हो, मुझसे खफा हो जाओगे फिर राजी हो जाओगे, लेकिन ये दूसरे का घर छोड़, अपना घर छोड़ के मेरे घर आई है, तो इनको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी। तो अपनी बहुओं को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करें और बहुओं की औलाद को भी ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करें, क्योंकि उससे ये होगा कि उसको लोनलीनेस फील नहीं होगी। अपनी बेटियां तो जैसी भी होती है, अगर आप उनको थोड़ा सा किसी टाइम इग्नोर भी कर दें, ज़्यादा नहीं, किसी टाइम इग्नोर भी कर दो तो वो समझ सकती हैं। मेरी बेटियां समझती हैं। मेरी बेटियां हमेशा मुझे कहती है तुम सिद्दीक और दीना और अमीरा और समी का करो, हमारा इतना ख्याल छोड़ दो, तो हम खुश हैं तुम्हारे साथ हर हालत में, तुम उनका करो। तो माशाल्लाह मेरी बेटियां भी जेलस नहीं हो रही। जैसे मैंने कहा कि ये जो मेरा पोतकौल का बड़ा घर है, मैंने कहा ये मेरे 5 औलाद के लिए मैंने वसीयत की के लिए, मेरी तीनों बेटियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यही कहा है। कहती नहीं, हम तीनों ये घर अपने दोनों भाइयों को देंगे, हम इसमें कुछ नहीं लेंगे। तो ऐसी औलाद होनी चाहिए। मेरी ऐसी बेटियां हैं और मैं उन पर फ़ख्र करती हूँ, और मेरी बहुएं भी ऐसी हैं। यकीन करो, कभी मैं कह देती हूँ कि दीना के सामने या अमीरा के सामने मैं कह देती हूँ कि ये घर तुम लोगों का है, मेरी बेटियां नहीं ले रही, तो वो आगे से कहती नहीं ये तुम्हारा घर है। दोनों मेरी बहुएं ऐसे कहती ऐसे नहीं करो, तुम्हें अल्लाह लॉन्ग लाइफ दे और ये तुम्हारा घर है, ये किसी का भी नहीं है, ये तुम्हारा ही रहेगा और हम सब फैमिली इसमें आके इकट्ठे रहा करेंगे और इकट्ठे इंजॉय किया करेंगे, बाकी अपने अपने घरों में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बुरी नज़र से बचाए और अल्लाह शैतान ईवल आई से बचाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों में, मेरे घर में नोक झोंक होती है,
होने का गम में वो लाहौर में गिरा के आते हैं।